नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं चेस के दिल्ली के खिलाड़ी मौजूद हैं और इनमें से कुछ लोग पास आउट हो चुके हैं, 12th पास आउट हो चुके हैं, कुछ ऑलरेडी अभी स्कूल में हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं। तो आइए एक बार जानकारी लेते हैं कि इस एसजीएफआई में पार्टिसिपेंट करने का इनके लिए क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। पहले तो अपना एक-एक करके सारे नाम और स्कूल बताएँ। Prakriti Grover from Sadhu Vaswani International School for Girls. Ananya Gupta from Bal Bharati Public School, Gangaram. I am Daita Arora from Darshan Academy School, Delhi. I'm Riddhi Maheshwari from GD Goenka Public School, Model Town. पहले तो आप लोगों में से एसजीएफआई किस-किस ने पहले ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ है? 3 लोग पार्टिसिपेट कर आपने पहली बार किया, तो चलो पहले आपसे आते थे क्योंकि आप 12th पास आउट हो चुके हो। अगर इस साल एसजीएफआई नहीं होती तो? If this year SGFI would have not been done, then it would be a great loss to me because this is my first time and the certificate of this will help me a lot in my future, in my career, in my resume. So I'm really grateful to the government of India and for making this organized. एसजीएफआई SGFI and also to the sir and coach and manager. I'm really grateful to them. अभी आप लोग मिले भी यहाँ पे जो डॉक्टर अमरजीत शर्मा थे, सेक्रेटरी जनरल इनका, और हमारे जो प्रेसिडेंट एसजीएफआई के हैं दीपक कुमार जी आईएएस ऑफिसर हैं और कुछ वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है और उन्होंने ये फील किया कि बच्चे जो अभी पास आउट हो रहे हैं, अगर एसजीएफआई नहीं होती है तो वो जो एक बेनिफिट बच्चों को मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। उस सर्टिफिकेट का अब आपको एडवांटेज कॉलेज में या जॉब्स में आपको मिलेगा। ये अगर नहीं हुआ तो शायद आप एटलीस्ट इन 4 में से आप अकेले ऐसे हो कि आप एसजीएफआई गेम शायद लाइफ में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते, आगे ख़त्म हो जाता। चलिए, आप पास आउट हो चुके हैं। Yes. क्या आप किस कॉलेज में कहीं एडमिशन आगे लेने का है जिसमें आपको ये सर्टिफिकेट काम आ सके? Delhi University. Everyone from Delhi want to go in Delhi University, and there is so much competition in this. And to get into, you need a good score in academics, but also you need something else like in sports or some extracurricular activities that helps you to get in. So yes, chess has helped me a lot, and this SGFI has even increased my chances to get into the Delhi University, and also my profile is just so good now after this. दिल्ली में तो जो लिस्ट जाती है, कट ऑफ लिस्ट जाती है और 98 99 जाती है, तो वहाँ पे तो कंपटीशन ही बहुत हाई है। उसका एडवांटेज इस सर्टिफिकेट की वजह से आपको वहाँ एडवांटेज। Yes, and mainly like SRCC, if we talk about, like there are so much, everyone wants to go in SRCC, and there are so many people who get into SRCC on the basis of the extracurricular activities and sports and all that stuff. चेस ही क्यों? Because it helps in your academics also. If you are doing chess, it will help you in maths, in your problem solving, how you tackle the situation in real life also. And the patience is the most important thing in the chess. You have to be patient, and while there is clock, and you have to be silent and disciplined throughout the competition. चलिए, आप अगर चेस नहीं खेलते तो क्या खेलते? मैं chess I play taekwondo and football also. इसके अलावा और किसी कंपटीशन में, चेस के अलावा किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? किसी और नेशनल में पार्टिसिपेट किया? क्या सोचते हैं आगे चेस में किस लेवल तक जाना चाहेंगे, या कॉलेज में एडमिशन लिया और कि स्पोर्ट्स खत्म? No, I play chess because it's my passion. I love playing chess, so I obviously continue even after I am into a college. So I'm going to continue chess till I enjoy playing it. क्या इम्प्रूव अब चेस में चेंजेस क्या आई हैं? कोई टाइम था कि वो बुजुर्गों का खेल समझा जाता था, टाइम पास बैठे हैं 4-4 5-5 घंटे। Obviously, now people have started taking chess seriously, and earlier it was not considered a sport. Everyone thought it was a time pass skill, or they do not. Still, there are many people who do not consider chess as a good sport. They think it's a board game and an indoor game. But like chess is a mind game, and also it requires a lot of patience, discipline, and stress management, pressure management. So it teaches you a lot of stuff. आप और चेस के अलावा कौन सी गेम खेली? I have played many games, like I have played table tennis, I have played skipping, I have also done, I have also played volleyball, but not to this level. वो छोड़ने का रीज़न? Interest.
my interest just when it came over here, I just left everything. I was just focused on one sports now because I need to be focused so that I can proceed ahead in my life. That's why. आपके लिए SGFI नेशनल की इम्पोर्टेंस क्या है? For me, SGFI nationals are something which I'll keep on priority always, because this opportunity, not everyone gets this opportunity. Secondly, of course, it helps in future resume and everything. Thirdly, the experience that we get from here is gonna help us for a lifetime and not just now. So SGFI nationals is something that I'll always go for. If I have to do something else, I'll keep this on priority. आपने चेस चूज़ किया, चेस में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ब्रेन आप कहते हो ठीक है, शार्पनेस और वो मान सकते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से भी अफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे, आप जानते हैं आप लोग। Yes, I know that physical activity also helps our brain grow, but at the same time, I know my capability and I know that I cannot do well in physical activity. That is why I chose chess, and I think that the physical activity requires strength and everything, whereas chess can be played by a blind person also, a handicapped also. So I think that chess gives you more opportunity than any other physical sport. मैं आप लोगों को चेस खेलने के मैं डीमोटिवेटेड नहीं कर रहा, मेरे क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये है कि चेस आप दूसरी कोई स्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे, एक एज के बाद आप जो एक डेमेंशिया होने लगता है, आप चीज़ें भूलने लगते हैं, वो एक बहुत डेंजरस है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ आपकी एक्टिविटी नहीं होती है, उस वजह से। तो उसके लिए फिज़िकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है। आप एज ए कॉम्पिटिटिव कोई स्पोर्ट ना खेलें, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई आपको स्पोर्ट्स ना सही, जॉगिंग इम्पॉर्टेंट है, वॉकिंग जो है वो मॉर्निंग में या इवनिंग है, क्योंकि आप लोग स्कूल में हैं, सारा दिन स्कूल में बैठे हुए हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप गेम भी खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, तो भी बैठे हुए हैं। तो मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप फिज़िकली खुद को एक्टिवेट करें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी जो आपसे आप सभी के लिए जो एक सजेशन है कि कोई ना कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। आप लोगों में से 2 लोग फिर से खेलने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर आप SGFI खेल पाएंगे। Yes, अगले 6 I'll महीने try. बाद फिर से SGFI होने जा रही है। Yes, I'll qualify the अगर trials. दिल्ली में ही चेस मिलती है तो मतलब कि जनवरी फर्स्ट वीक रहती है, Yeah. उसके लिए तैयारी करेंगे। Yes, I'll surely go for I'll practice more, because I want to get qualified in the next trials too. Because like them, I also want to play SGFI nationals after passing 12th class. So yes, I'll really. वो तो आप practice. ये लास्ट ईयर आपके पास, उसके बाद आपको वो 12th पास आउट जो इनको मौका मिला है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो दिस विल बी द लास्ट ईयर, वो डिपेंड करेगा कि आप इसमें कुछ अचीवमेंट कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। चलिए एक चीज़, हाँ लास्ट एक चीज़ और पूछूंगा, सभी इंग्लिश में बोल रहे थे, क्या हिंदी आती नहीं है या स्कूल से प्रेशर रहता है कि इंग्लिश ही बोलनी है? नहीं, हिंदी आती है, हिंदी सबसे तो हिंदी के चैनल पे हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी में क्यों नहीं? आदत पड़ी है, यूज्ड टू। पेरेंट्स भी कहते हैं इंग्लिश बोलनी है, स्कूल वाले भी कहते हैं इंग्लिश बोलनी है। चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को फ्यूचर के लिए जो है उम्मीद है कि आप सब सक्सेसफुल होंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से।